فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک شہر دکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سا ہی دن تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی تھے، گاڑیوں کا رش تھا۔ خیر ایسے ہی سگنل کے لیے رکی گاڑیوں میں سے ایک جاپانیز بزنس مین بیٹھا تھا۔ سگنل کے گرین ہوتے ہی وہ آگے نہیں بڑھتا کیونکہ دھیرے دھیرے وہ اندھا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آخر میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کافی گھبرا جاتا ہے۔ پیچھے جو گاڑیوں میں بیٹھے لوگ تھے وہ بار بار ہارن بجا رہے تھے، اور جب وہ دیکھنے آتے ہیں تو وہ اس آدمی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک آدمی جو کافی دیالو تھا، وہ اس بزنس مین کی مدد کرتا ہے۔ گھر پہنچانے کے لیے وہ اس کی کار میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس آدمی کو گھر کے پاس اتار دیتا ہے، جو آدمی اس کی مدد کر رہا تھا اصل میں وہ ایک چور تھا۔ وہ اس کی گاڑی چرا کر لے جاتا ہے کیونکہ وہ بس اچھا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اس کا مقصد اس آدمی کو لوٹنا تھا۔ بزنس مین کافی پریشان تھا، اسے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ اپنے اپارٹمنٹ تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی چور جس نے اس آدمی کو گھر پہنچایا تھا وہ دوبارہ سے آتا ہے، مگر اس بار وہ الگ نام بتاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اسے لوٹ سکے۔ خیر یہ جاپانیز آدمی اسے اپنے اپارٹمنٹ کا ایڈریس دیتا ہے۔ چور جیسے ہی اسے اپارٹمنٹ میں پہنچا دیتا ہے تو وہ پہلے سے ہی اپنا سبق سیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ چور اسے دوبارہ لوٹتا، وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بزنس مین اپنی وائف کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ گھنٹے بعد جب وہ گھر لوٹ آتی ہے تو اپنے پتی کو اس حالت میں پاتی ہے۔ وہ بھی گھبرا گئی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر جب آنکھوں کا چیک اپ کرتا ہے تو اسے کوئی بھی گڑبڑ نظر نہیں آتی۔ اس آدمی کی آنکھیں ٹھیک تھی، اسے لگا کہ شاید یہ بیماری نیورولوجیکل ہے، اس لیے وہ اس کپل کو ہاسپٹل بھیج دیتا ہے تاکہ یہ لوگ وہاں کچھ ٹیسٹ کر سکے۔ جاپانیز کپل کے بعد کچھ اور پیشنٹس بھی آتے ہیں۔ ایک عورت جو سن گلاسز پہنے رکھتی تھی، اس کا نام ایلس تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ایک چھوٹے لڑکے اور ایک بزرگ آدمی کا بھی چیک اپ کرتا ہے، مگر یہ لوگ ابھی تک ٹھیک تھے۔ شام کو دکھایا جاتا ہے وہ چور جس نے آج ہی اس بزنس مین کی گاڑی چرائی تھی، مگر وہ آس پاس پولیس کو دیکھ لیتا ہے، اس لیے وہ ایک جگہ کار پارک کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ بھی دھیرے دھیرے اندھا ہو رہا تھا اور کچھ سمے کے بعد اسے بھی کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ مجبوراً وہ پولیس سے مدد مانگتا ہے۔ ایک پولیس والا اسے گھر لے جاتا ہے، مگر یہ چور تھا اس لیے اپنی پتنی ہی سے گھر میں نہیں آنے دیتی۔ سین شفٹ ہوتا ہے سن گلاسز والی عورت ایلس پر، جو شام کو ایک ہوٹل میں جاتی ہے۔ اسی ہوٹل میں ایک بار ٹینڈر بھی تھا، وہ ایک ڈرنک مانگتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کلائنٹ سے ملتی ہے۔ کلائنٹ سے ملتے سمے وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر اس کے بعد ایلس بھی اندھی ہو جاتی ہے۔ شام کو ڈاکٹر اپنے گھر جاتا ہے، اس کی پتنی نے کافی اچھا کھانا بنایا تھا، یہاں تک سب ٹھیک تھا، مگر صبح اٹھنے کے بعد ڈاکٹر بھی اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی پتنی جس کا نام جولیانا تھا وہ ابھی تک ٹھیک تھی۔ اندھے ہونے کے پیٹرن سے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی طرح کا وائرس ہے جو لوگوں کو اندھا بنا رہا ہے اور یہ ایک انسان سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ جیسے پہلے اسے جاپانیز بزنس مین کو، اس کے بعد چور کو، وہ ڈاکٹر سے بھی ملا تھا، اس لیے ڈاکٹر بھی اور ڈاکٹر جن پیشنٹ سے ملا وہ سب اب اندھے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر یہ خبر بڑے ہاسپٹل کو دیتا ہے کہ شاید کوئی بیماری ہے، کسی طرح کا وائرس، کیونکہ اس کے کافی پیشنٹس اب اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ایک چھوٹے لڑکے کا بھی علاج کرتا تھا، مگر اب وہ بھی اندھا ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سب اور بڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے شہر میں لوگ تیزی سے اندھے ہو رہے تھے۔ سرکار کو اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں کام شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹر کے کلینک کو سیل کروا دیتے ہیں، اسے کوارنٹین کے لیے ایک جگہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بیماری چونے یا ہوا سے پھیلتی ہے تو ڈاکٹر کی وجہ سے یہ باقی لوگوں میں بھی پھیل چکی ہے۔ اب ڈاکٹر کی پتنی جولیانا کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کے پتی کو لے جایا جا رہا ہے، اسے اپنی پتی کی فکر تھی، اس لیے وہ بھی اندھا ہونے کا ناٹک کرتی ہے، تو اسے بھی ڈاکٹر کے ساتھ ایک اسائلم میں لایا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی اور بالکل خالی جگہ تھی، یہاں صرف انفیکٹڈ لوگوں کو رکھا جاتا۔ ابھی تک تو صرف ڈاکٹر اور اس کی پتنی کو ہی یہاں رکھا گیا تھا۔ یہاں پر الگ الگ وارڈز تھے، ہر وارڈ میں ایک ٹیلی فون تھا جسے صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور صرف وارڈ کا ریپرزینٹیٹیو ہی کال کر سکتا تھا، وہ بھی سب کی مرضی سے۔ اور باہر اس جگہ پر نگرانی رکھنے کے لیے ملٹری سولجرز تھے تاکہ یہاں سے کوئی جائے نہ۔
मतलब जब तक वो ठीक ना हो जाए। कुछ समय के बाद यहाँ और लोगों का आना भी शुरू हो जाता है, जैसे वो चोर, एलिस नामी वो औरत, छोटा बच्चा, वो बुजुर्ग और जापानीज आदमी। अब नए लोगों के आने से डॉक्टर और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। डॉक्टर अपनी पत्नी को समझाता है कि हमें अपना ये राज रखना होगा कि तुम देख सकती हो, वरना इससे काफी समस्या आएगी। सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई मेडिकल स्टाफ नहीं मिलता, जो कि सरासर ज्यादती है, क्योंकि एक अंधे को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वो भी ऐसे अंधे को जो पहले ठीक ठाक थे। खैर अब इन्हें जिंदा तो रहना ही था। सबसे पहले ये बाथरूम तलाश करते हैं, जो कि जूलियाना को तो नजर आ रहा था, मगर वो बाकी सबको ये नहीं बता सकती थी, इसलिए वो भी नाटक करती और किसी तरह वो सबको बाथरूम का रास्ता दिखाती है। सभी लोग एक कतार में चल रहे थे, एक दूसरे को पकड़े हुए थे। एलिस नामी औरत के पीछे वही चोर था, जो कि सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि छिछोरा भी था। वो एलिस को हाथ लगाता है, वो भी ऐसी जगह जहां हाथ नहीं लगाना चाहिए था। एलिस को गुस्सा आता है। उसने हाई हील पहनी थी, वो उसे एक लात मार देती है। हाई हील की वजह से चोर की टांग काफी जख्मी हो गई। सभी तो अंधे थे, जख्म का इलाज कैसे करे वो समझ नहीं पाते। फिर भी जहाँ से खून बह रहा था, डॉक्टर उसे कपड़े से बांध देता है, क्योंकि फर्स्ट एड किट तो उन्हें मिलने वाला था नहीं। रात को जब सभी सो रहे थे, जूलियाना को नींद नहीं आती। वो अपने पति से कहती है कि मुझे उस आदमी की फिक्र हो रही है। जख्म इतना गहरा है कि इन्फेक्शन हो सकता है, शायद एक सुबह मैं भी अंधी होकर उठूं। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन और भी लोग इस असाइलम में भेज दिए जाते हैं। वो बिजनेसमैन जो सबसे पहले अंधा हुआ था, उसे अकेले ही यहाँ भेज दिया गया था, मगर अब उसकी पत्नी भी अंधी हो चुकी थी, तो उसे भी असाइलम में भेज दिया गया और दोनों एक दूसरे को वापस पाकर खुश थे। मगर और लोगों के आने का मतलब यही था कि अब ये बीमारी तेजी से दुनिया में फैल रही है। वो छोटा लड़का जो कभी डॉक्टर से अपनी आंखों का इलाज करवाता था, उसे भी पहले ही दिन ही यहाँ भेज दिया गया था, मगर उसकी माँ अभी तक नहीं आई। उसे अपनी माँ की फिक्र थी, मगर एलिस को उस पर तरस आता है, इसलिए उसकी माँ के आने तक वही उसका ख्याल रखने वाली थी। वो चोर जिसे एलिस ने लात मार के जख्मी कर दिया था, आज उसकी तबीयत खराब थी। इस असाइलम के गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे, इसलिए डॉक्टर और उसकी पत्नी उनके पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि हमारे पास एक जख्मी है। मगर वो गार्ड्स इन दोनों को ही चेतावनी देते हैं कि अगर आगे बढ़े तो मार डालेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि सरकार को इन लोगों की नहीं पड़ी थी। वैसे तो है ये एक फिल्म, रियल लाइफ में भी ये कड़वी सच्चाई है। अब मजबूरन डॉक्टर और उसकी पत्नी वापस जाने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ समय बाद इनके लिए खाना भेज दिया जाता है, जो एक बॉक्स में बंद था। ये खाना अच्छा नहीं था, ये ऐसा ही था जैसे जेल में कैदियों को दिया जाता है। यहाँ तक कि ये खाना बहुत कम था, कुछ लोग तो भूखे रह जाते हैं। जूलियाना अथॉरिटीज को कॉल करने की बहुत कोशिश करती है कि वो लोग और खाना और फर्स्ट एड किट भेजे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। हर कॉल वॉइस मेल पर जा रही थी, इसलिए वो कई मैसेजेस छोड़ती है। अगले दिन असाइलम में और अंधे लोगों को भेज दिया जाता है, उसके अगले दिन और ऐसे करते करते ये असाइलम भरने लगा। मगर भूले ना कि ये सभी लोग अंधे हैं। वार्ड 1 में जूलियाना और उसके पति ही रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग उनकी बातों को भी मानने से इनकार करने लगे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने परवाह करना छोड़ दी, जैसे बाथरूम जाना या कपड़े पहनना, क्योंकि सभी अंधे थे। धीरे धीरे सिविलाइज्ड इंसान जानवरों में बदलने लगे। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए, मगर बहुत ऐसे थे जो अब अंदर से टूट रहे थे, मानो जिंदा लाशें। जैसे वो जापानीज आदमी अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए अपनी पुरानी दिनों की बातें करता है, मगर उसकी पत्नी ने उम्मीद छोड़ दी थी। एक दोपहर जूलियाना एक आवाज सुनती है। आवाज का पीछा करते हुए वो पहुंच जाती है उस एक आंख वाले बुजुर्ग के पास। वो बाकी सबसे छुपकर रेडियो सुन रहा था। उसके पास एक छोटा सा पुराना रेडियो था। जूलियाना किसी तरह उस बुजुर्ग को मना लेती है कि वो बाकी सबके साथ न्यूज़ शेयर करे। वो बताना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे सभी लोग घबरा जाते, मगर जूलियाना चाहती थी कि सबको सच का पता होना चाहिए, ताकि वो एकजुट हो जाए, एक दूसरे की मदद करे। बुजुर्ग कहता है कि शुरू में ये सिर्फ 100 केसेस थे। सरकार ने लोगों को क्वारंटीन में रखा,
फिर ये बढ़ने लगा। पूरी दुनिया में सरकार ने इन्फेक्टेड लोगों को अलग रखा, जो ठीक थे उन्हें अलग, और ये आदेश दिया गया कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं आएंगे। दिन गुजरते गए मगर हालात ठीक होने के बजाय और भी खराब हो रहे थे। इसलिए लोग अपने ही घरों में बोर हो गए, वो बाहर निकलने लगे। सरकार ने काफी लोगों को मारा मगर वो नहीं रुके। आहिस्ता आहिस्ता सरकार में जो लोग थे वो भी अंधे होने लगे और अब बाहर कोई सरकार नहीं है जो इन्हें बचा सके। शहर वीरान हो चुके हैं, लोग या तो मर गए या अंधे हो गए। कई हवाई जहाज क्रैश हो चुके हैं, अनगिनत एक्सीडेंट। ये सब सुनने के बाद कुछ लोग तो अपना आपा ही खो देते हैं। सरकार ही तो इनकी आखिरी उम्मीद थी। ऐसा भी नहीं था कि अभी तक पूरी दुनिया ही अंधी हो चुकी थी। मिलिट्री ने अभी भी कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। वो अभी भी इन्फेक्टेड लोगों को ऐसे बड़े बड़े इमारतों में भेजते। एक रात जब काफी लोगों को इस असाइलम में लाया जा रहा था तो कतार से एक आदमी गलती से निकल जाता है। मिलिट्री वाले उसे शूट कर देते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं थी इन लोगों की। वो बस चाहते थे कि इनकी वजह से बाकी दुनिया पर असर ना पड़े। गोली की आवाज सुनते ही सभी लोग बेकाबू हो जाते हैं। एक दूसरे को पकड़े हुए ये लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, काफी कुचल भी जाते हैं। दरवाजा तोड़ के ये लोग अंदर तो आ जाते हैं। अगले दिन उन गार्ड्स में से एक भी नहीं आता उन लाशों को उठाने के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये खुद ही से दफनाए। जूलियाना ये पागलपन देख रही थी तो वो बाहर आती है और गार्ड से शावल मांगती है। गार्ड्स उसकी तरफ शावल फेंकते हैं। अब चूंकि जूलियाना अंधे होने की एक्टिंग कर रही थी इसलिए वो अचानक से शावल को नहीं उठाती बल्कि वो डायरेक्शन के बारे में पूछती है। शावल लेने के बाद गुस्से में वो गार्ड्स को उंगली दिखाती है और अंदर आ जाती है। अब हर वार्ड में लोग थे। वार्ड 1 का रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर था तो वो वार्ड 3 में आता है और उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें उन लाशों को दफनाना होगा और इसमें तुम लोगों की मदद चाहिए। डॉक्टर ये भी बताता है कि वार्ड 3 बाकी वार्ड्स के मुकाबले ज्यादा खाना ले रहा है। काफी लोगों को उसकी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। बारटेंडर डॉक्टर की बातों से बोर हो रहा था। उसे ऐसे फील हो रहा था जैसे डॉक्टर यहाँ का लीडर बनना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि मैं वार्ड 3 का किंग हूँ और हमें बाकी सबसे ज्यादा खाना मिलना चाहिए। ये सुनते ही वार्ड 3 के लोग उसका साथ देते हैं और डॉक्टर की कोई बात नहीं मानते। वहाँ जूलियाना अब उस चोर को देखने आई थी। उसके पैर का इन्फेक्शन बढ़ चुका था और वो मरने वाला था। अभी तक उसका इलाज नहीं हो सका। जूलियाना को बहुत बुरा लगता है। वो उसकी मदद करना चाहती थी मगर चोर उसे धमकी देता है कि मैं जानता हूँ तुम अंधी नहीं हो और मैं बाकी सबको ये बताने वाला हूँ। ये सुनते ही जूलियाना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो अकेले में बहुत रोती है। अब वो पागल हो रही थी। वो चोर ऐसे ही तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता था। वो ये किस्सा ही खत्म करना चाहता था। इसलिए वो रेंगते हुए बाहर आता है जहाँ गार्ड्स किसी को बाहर जाने नहीं देते थे। उनके मना करने के बावजूद वो आगे बढ़ रहा था, इसलिए गार्ड्स उसे मार देते हैं। अगले दिन जूलियाना को इस बात का पछतावा होता है। वो अपने पति से कहती है कि शायद मुझे बाकी सबको बताना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, मगर डॉक्टर उसे मना करता है कि ऐसा कभी मत करना, बल्कि उसके दिल में जो गिले शिकवे थे वो भी बयां करता है। डॉक्टर कहता है कि हमारे बीच पति पत्नी वाली कोई बात ही नहीं है। तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करती हो जैसे मैं डॉक्टर और तुम मेरी नर्स हो। खैर कुछ दिन बाद ही वो बारटेंडर और उसके कुछ साथी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। वार्ड 3 में उसे एक ऐसा इंसान मिला था जो जन्म से ही अंधा था, तो उसके लिए ऐसे जीना काफी आसान था। उसी की मदद से बारटेंडर ने ऐसा किया। बारटेंडर सभी वार्ड्स में ये अनाउंस करता है कि अब मैं इस असाइलम का राजा हूँ और खाने के बदले सभी को कुछ देना होगा। उसका ऐसे दावा करना बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए सभी फूड स्टोरेज पर टूट पड़ते हैं। मगर बारटेंडर और उसके साथी जिनके पास सीक्रेट की थी वो उन सभी को मारते हैं, डराते हैं। मजबूरन सभी को पीछे हटना पड़ा और अब बारटेंडर सच में अंधों का राजा बन गया। मुसीबत ये थी कि बारटेंडर के पास गन आ गई थी और गन की वजह से बाकी लोग डर रहे थे, इसलिए कुछ समय के लिए ये लोग चुपचाप ही रहते हैं। जब खाना खाने का समय आता है तो सभी को अब खाने के बदले कुछ देना था। लोगों के पास जो भी था, जैसे जेब में पड़े पैसे, उनकी ज्वेलरी, वो एक बैग में डाल देते हैं ताकि बारटेंडर को दे सके।
उस छोटे लड़के के पास कुछ नहीं था, मगर एलिस जो अब उसका ख्याल रख रही थी वो उसकी मदद करती है। जब ये सारा सामान बारटेंडर और उसके साथियों तक पहुंचता है, उसके पास एक अकाउंटेंट था जो सामान की जांच करता है कि कहीं ने बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा। उसी दिन बारटेंडर वार्ड वालों को खाना देता है, वो भी कुछ बॉक्सेस, जो बहुत कम था। जब डॉक्टर और मांगने की कोशिश करता है तो बारटेंडर उसे धमकाता है। डॉक्टर अब काफी निराश हो चुका था, क्योंकि ना तो वो लीडर था, ना ही वो इन लोगों की मदद कर पा रहा था, बल्कि हर दिन ये सभी जानवर बनते जा रहे थे। धीरे धीरे डॉक्टर भी अपना आपा खो रहा था, मगर उस रात एलिस उसके पास आती है, उसे हिम्मत देती है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यहाँ तक के दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। जूलियाना ये देख लेती है, डॉक्टर को ये अच्छा नहीं लगता। जूलियाना एलिस के करीब आती है और उसके कान में कहती है कि मैं देख सकती हूँ और अब तो पछतावे के साथ ही जीना। अगले दिन बारटेंडर औरतें मांगता है और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो इसके बदले खाना देगा। सब ये सुनकर गुस्से से पागल तो हो रहे थे। जूलियाना बाहर जाती है, गार्ड से पूछती है कि अभी तक और खाना क्यों नहीं आया, तो गार्ड्स कहते हैं कि अब और खाना नहीं आने वाला, सब खत्म हो चुका है। अजाइलम में जो खाना था वो बारटेंडर और उसके वहशी साथियों ने अपने कब्जे में लिया था। उस दिन वार्ड 1 वालों की आपस में बात हो रही है, वो औरतों को भेजे या ना भेजे। डॉक्टर सबसे कहता है कि हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तो कर सकता है, वरना हम भूखे मरने को तैयार है। एक औरत उठती है, एलिस भी तैयार थी। डॉक्टर की पत्नी भी वॉलंटियर करती है, यहाँ तक कि उस जापानीज बिजनेसमैन की वाइफ भी। उस रात जब वो लोग जाते हैं तो वो लोग सच में वहशी थे, वो वायलेंस को पसंद करते थे, शायद सभी साइको थे, इसलिए औरतों के साथ काफी ज्यादती होती है, यहाँ तक कि एक को तो मार दिया जाता है। अगली सुबह औरतें खाने के साथ वापस वार्ड में तो आती है, मगर उनके पास एक लाश भी थी जिसे बाद में वो दफना देते हैं। अगले दिन बारटेंडर का एक आदमी आता है जो बाकी वार्ड्स वालों से भी सेम ही डिमांड करता है। उन्हें भी खाने की जरूरत थी, मगर अब जूलियाना और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे एक सीजर मिली थी। जब बारटेंडर और उसके साथी अपनी दरिंदगी में लगे हुए थे तो जूलियाना बारटेंडर को मार देती है। जूलियाना चूंकि देख सकती थी इसलिए वो बाहर निकल आती है और ये भी कहती है कि अगर खाने को नहीं भेजा गया तो और लोग भी मारे जाएंगे। जब डॉक्टर को इस बारे में पता चलता है तो वो जूलियाना से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे एक जंग छिड़ जाएगी यहाँ। और वही होता है। वार्ड 3 वाले जिनके पास खाना था वो रास्ते को ही ब्लॉक कर देते हैं। वार्ड 1 वाले भी जंग का ऐलान कर देते हैं। कुछ लोग थे जो जंग नहीं चाहते थे। उसी रात एक औरत जिसके साथ बुरा हुआ था, उसके जेब में एक लाइटर था, वो चुपके से जाती है और वार्ड 3 में आग लगा देती है। उस आग से काफी लोग मारे जाते हैं क्योंकि बुझाने के लिए कोई नहीं था। वो आग धीरे धीरे पूरे अजाइलम में फैलने लगी। जूलिया अपने लोगों को किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकाल लेती है। हालांकि उन्हें डर था कि जैसे ही वो इमारत से बाहर आएंगे गार्ड्स उन्हें शूट कर देंगे, मगर सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं होता क्योंकि अब वहाँ कोई मिलिट्री नहीं थी। जब ये लोग दरवाजे के पास जाते हैं तो वो भी खुला था, इसलिए सभी लोग बाहर निकल आते हैं। ये लोग कैदियों की तरह इस असाइलम में आए थे और इन्हें काफी दिन हो गए, मगर ये लोग इस दुनिया को जानते थे। अब दुनिया वैसी नहीं थी, सिर्फ वही लोग बाहर निकल आते हैं जिन्हें हमने कहानी के शुरू में देखा था, जैसे वो छोटा बच्चा, वो बुजुर्ग इंसान एलिस, डॉक्टर और उसकी पत्नी जूलियाना, वो जापानीज आदमी और उसकी पत्नी। जब ये शहर में आते हैं तो ये दिल दहला देने वाला मंजर देखते हैं कि सारा सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। आसपास अंधे लोग थे जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे पर हमला कर रहे थे क्योंकि वो भी भूखे थे। किसी अंधे के लिए इस बड़े शहर में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे हमें एक आदमी दिखाया जाता है, उसके पास ट्रॉली थी और आवाज सुनते ही भूखे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। यहाँ तक के लोग एक दूसरे पर भी हमला करते कि शायद उसके जेब में खाने को कुछ हो। बदतर हालात थे, जानवर इंसानी लाशें खा रहे थे। जूलियाना चूंकि देख सकती थी, वो अपने साथियों को एक बार में छुपा देती है और खुद डॉक्टर के साथ एक सुपरमार्केट जाती है कि अगर उसे खाना मिल सके। ज्यादा खाना बचा नहीं था, इसलिए जूलियाना स्टोरेज रूम में जाती है। डॉक्टर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जूलियाना कुछ खाना लेती है, बाहर जो लोग थे
वो आवाज सुनते हैं। वो जूलियाना पर हमला कर देते हैं, उसे काना छीनने की कोशिश करते हैं। बचाने के लिए डॉक्टर जाता है आवाज का पीछा करते हुए और जूलियाना को बाहर ले आता है। रास्ते में जूलियाना को एक डॉग भी मिल चुका था। जब ये दोनों वापस आ रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। ये एक चर्च में पनाह लेते हैं। उस चर्च में हर स्टैचू की आंखों पर पट्टी थी और एक पादरी अभी भी प्रार्थना कर रहा था। ये अंधे लोग काफी दिनों से नहाए नहीं थे, कुछ प्यासे थे, तो ये बारिश को लेकर बहुत खुश थे। खैर कुछ कपड़े भी डॉक्टर अपने साथ लेता है। शाम को ये उस बार में लौट आते हैं। उनके साथ ही पेट भर खाना खाते हैं, रात वही बिताते हैं और अगले दिन शहर से बाहर जाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर और जूलियाना सबका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर वो शहर से बाहर निकल आते हैं। वो एक घर में रहने लगे, मगर इंसानों की तरह। वो खाना बांटते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, घर को साफ रखते थे। काफी दिनों तक ये ऐसे ही रहे। वो तभी बाहर जाते जब खाने की जरूरत होती और जब भी बारिश होती पानी को जमा करते। अब तो ये कहने लगे थे कि ये पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाले हैं। ये एक परिवार की तरह थे। आपस के रिश्ते भी अब काफी अच्छे हो जाते हैं, जैसे जूलियाना का अपने पति से, और वो जापानीज कपल भी अब एक दूसरे के करीब आ चुका था। कुछ हफ्ते बाद वही जापानीज आदमी जो सबसे पहले अंधा हुआ था एक सुबह उसे दिखने लगा। वो खुशी से चिल्लाता है। सभी लोग खुश थे। उन्हें एक उम्मीद नजर आई कि शायद वो ठीक हो जाए। शायद अब उनका शरीर इस बीमारी से लड़ने लगा है और आगे सब ठीक हो जाएंगे। मगर दुनिया के हालात को वापस ठीक होने में काफी समय लगने वाला था। फिर भी कुछ हद तक इस मूवी की हैप्पी एंडिंग। और उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें।